بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ملتان شہر میں گرین بیلٹس کا کوئی پرسانح حال نہیں ہے۔ وہاڑی چوک بائی پاس گرین صرف نام کی حد تک گرین رہ گیا ہے۔ گرین بیلٹ میں دور دور تک گھاس کا نام و نشان نہیں ہے۔ مزید دیکھیے علی ریاض کی اس رپورٹ۔ پی ایچ اے ملتان کے شہر کی شاہراہوں کو خوبصورت بنانے کے دعوے چھومنتر۔ شہر کی گرین بیلٹس کا کوئی پرسانح حال نہیں۔ وہاڑی چوک انڈر بائی پاس گرین بیلٹ صرف نام کی حد تک ہی گرین بیلٹ میں دور دور تک گھاس کا نام و نشان نہیں۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے درخت سوکھ گئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ کئی بار انتظامیہ کو آگاہ کیا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ گرین بیلٹ کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے مالی تعینات کیا جائے۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ یہاں کی صفائی کریں تاکہ یہاں سے گندگی ہٹ سکے اور ماحول بھی اچھا ہو، کیونکہ یہاں پر گرینری نہیں ہے۔ پہلے یہاں پر بہت گرینری ہوتی تھی، مگر جب سے پھر میٹرو بنی ہے اس کے بعد پھر جو انتظامیہ وہ ان کا خیال ہی نہیں رکھتی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پی ایچ اے جلد از جلد شہر کی گرین بیلٹس کی حالت کو بہتر بنائے۔ کیمرمین نعیم قریشی کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی ملتان کی عدم توجہی۔ جناح پارک کے جھولے گزشتہ 6 ماہ سے غیر فعال ہیں۔ پی ایچ اے نئے سال میں بھی پارک کے جھولے ٹھیک نہیں کرا سکا۔ ننھے بچوں نے جھولوں کو فعال کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی ملتان کے عوام کو تفریح فراہم کرنے کے دعوے ٹھوس۔ اعلانات کے عرصہ بعد بھی جناح پارک کے جھولے فعال نہ ہو سکے۔ چھٹی کے دن پارک میں تفریح کے لیے آنے والے بچوں کا بند جھولے منہ چڑھانے لگے۔ یہاں پر ہم مٹی سے کھلونے بنا کر اس لیے کھیل رہے ہیں ہم، لیکن سنڈے کے دن یہاں پر پارکنگ کے لیے آتے ہیں لیکن یہاں پر جھولے نہیں۔ بچے کہتے ہیں کہ پی ایچ اے کو جلد از جلد جھولوں کو فعال بنانا چاہیے۔ ہم یہاں پر سنڈے کے دن جھولے آئے تھے پر یہاں پر جھولے نہیں ہیں، ہم کیا حوالے سے انتظامات کریں۔ کیمرمین نعیم قریشی کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ لیا میں سڑکوں اور سیوریج کے مسائل کے حل کے لیے منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ ایم پی اے رفاقت گیلانی نے پل انگراز سے کموکا مل پھاٹک تک سڑک کے کام کا آغاز کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں پہنچنے پر ایم پی اے کا شاندار استقبال کیا گیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی رفاقت گیلانی کا کہنا تھا کہ منصوبے کے تحت سڑک اور سیوریج کا منصوبہ مکمل کیا جا رہا ہے۔ لیا شہر میں 70% تک سیوریج کا کام مکمل کیا جا چکا۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ ترقیاتی کام شروع ہونے پر شہریوں کا کہنا تھا کہ سڑک بننے سے ان کی مشکلات حل ہوں گی۔ رحیم یار خان ضلعی اور میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی نااہلی پر دکاندار سراپا احتجاج ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں کہ جامعہ قادریہ اور کالونی اسکول کی پہلی گلی میں سیوریج اور صفائی کے ناقص انتظامات سے خاصے پریشان ہیں۔ حکومت کے گرین اینڈ کلین پنجاب مہم کے دعوے چھو منتر۔ رحیم یار خان میں انتظامیہ کی غفلت اور نااہلی کے باعث گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ جامعہ قادریہ اور کالونی اسکول کی پہلی گلی میں گندگی سے تعفن پھیلنے لگا۔ صورتحال پر متاثرہ دکاندار سراپا احتجاج ہیں۔ تقریباً اس کو 1 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے، کمپلینٹ درج کروا ہمیں کوئی بھی نہیں آ رہا۔ کچرا آپ کے سامنے ہے، آئے دن گٹر کا پانی بند ہو جاتا ہے، کسٹمر شاپ میں نہیں آتے، دکاندار پریشان، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کو نیچے نہیں آنے دیتے، گندے پاؤں ہوتے ہیں بالکل۔ بس ٹی ایم سے ہمیں یہی گزارش ہے کہ اس کو صاف کروائیں۔ دکاندار کہتے ہیں کہ 1 ماہ سے گلی میں گندگی کے ڈھیر جمع ہے جس سے گاہکوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بدبو نے بھی پریشان کر رکھا ہے۔ طالبہ انتظامیہ سے کہ یہ گٹر لائن بالکل صاف کروائی جائے اور یہ کچرا یہاں سے اٹھوایا جائے، کیونکہ کسٹمر آتے ہیں ان کو بہت سمیل آتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ہماری کپڑے کا کام ہے اور کچھ درزی کی شاپ ہے۔ دکاندار نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ فوری اور مستقل طور پر علاقے میں صفائی کے انتظامات کو یقینی بنائے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ ایف ای ڈی ختم، جی ایس ٹی کم کیا جائے۔ ملتان موٹر کار ایسوسی ایشن مطالبات کے لیے سڑکوں پر آ گئی۔ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں امجد ملک۔ گاڑیوں کی پنجاب بائیو میٹرک نظام اور گاڑیوں کی ٹرانسفر اور رجسٹریشن کو آسان بنانے کے لیے ملتان موٹر کارز ڈیلرز ایسوسی ایشن نے احتجاج کیا۔ صدر چودھری طارق اور چیئرمین اظہر ممتاز ٹیپو سمیت دیگر عہدیداران شریک ہوئے۔ نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے ڈائریکٹر ایکسائز سے میٹنگ کی تھی، انہیں اپنے تجاویز بھی دی تھی اور گزارشات بھی پیش کی تھی جو ڈی جی کے پاس ابھی پڑی ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ پہلے تو جو 6 مہینے کا ٹائم دیا جائے، لوگ اپنے معاملات کو سیدھے کر لیں۔ اب اتنی پرانی گاڑی ہے، کوئی کسی نے بیچی ہوئی ہے کہ کوئی مر گیا ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، ریکارڈ مینٹین نہیں ہے ان کا کمپیوٹر میں، کوئی ملک سے باہر ہے، تو یہ مینیج کرنا بڑا مشکل ہے۔
चेयरमैन अजहर मुमताज टीपू ने पंजाब बायोमेट्रिक निज़ाम मुस्तरद करते हुए इस्लामाबाद तर्ज का निज़ाम लाने का मुतालबा किया। बायोमेट्रिक होनी चाहिए, हम इस हक में हैं, लेकिन वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि इस्लामाबाद में हमारा सिलसिला चल रहा है। इन्होंने थोड़ी उससे मुख्तलिफ किया है, तो उससे हमारा काम बहुत ही ज़्यादा मुतासर हो। मुजाहिरीन ने मुतालबात तस्लीम ना होने पर एहतजाज का दायरा कार वसी करने का इंदिया दे दिया। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। तौंसर शरीफ के इलाका मौजा चटपानी और जटगादी में इज्तिमाल का काम बंद हो गया। बस्ती सोकड़ा मुआजात के जिम्मेदारों ने कलमा चौक पर एहतजाज किया। मौजा चटपानी और मौजा जटगाड़ी के दर्जनों अफराद ने इलाके में इज्तिमाल और बंदोबस्त का काम बंद होने पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे कि इलाके में इज्तिमाल का काम बंद कर दिया गया है। बाअसर जमींदार भी नहीं चाहते कि इज्तिमाल का काम मुकम्मल हो, क्योंकि तहसील कोहे सुलेमान के दफातर के क़याम के लिए उन मवाज़ात का इंतखाब किया गया है जिसकी वजह से इलाकों में ज़मीनों की अहमियत और कीमतों में इजाफा हो गया है। इसलिए बाअसर अफराद ने सियासी असर और रसूख का इस्तेमाल करके इज्तिमाल के काम में रुकावटें पैदा कर दी हैं, जिसके बाद से महकमे ने इज्तिमाल का काम बंद कर दिया है। केहरोड पक्का शहर और गिरदोनवाह में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। खाद डीलर्स की दुकानों के आगे परेशान किसानों की लंबी लाइनें लग गई हैं। खाद ना मिलने से गंदम की फसल का रंग पीला पड़ गया है, जिसकी वजह फी एकड़ पैदावार मुतासिर होने का खदशा भी बढ़ गया है। किसान शदीद परेशान हैं। केहरोड पक्का में किसानों का कहना है गंदम की फसल को पानी ना लगने की वजह से फसल का रंग पीला पड़ गया। किसान एक बोरी के लिए दुकानदारों की मिन्नत समाजत करने लगे हैं। मखसूस खाद डीलर्स इंतजामिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। राय के मुताबिक डीलर्स ने अपनी ज़राई दुकानों की मशीनों मुंशियों के घरों में यूरिया खाद स्टॉक करवा रखी है। खाद बहरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। गंदम के बाद गन्ने और मकई की फसलों के लिए यूरिया की ज़रूरत होगी। डर है कि रबी के बाद खरीफ की फसल भी यूरिया के बहरान से मुतासिर हो सकती है। कोविड का जिक्र कर लेते हैं। कोरोना के साथ पाबंदियों की भी वापसी हो गई। एनसीओसी ने फजाई और जमीनी सफर के दौरान खाने की अशिया पर पाबंदी लगा दी है। सूबों के साथ मिलकर मौसर इकदाम करने का फैसला किया गया है। स्कूल खुले रहेंगे या बंद होंगे, सूबाई वज़राए तालीम का इजलास कल होगा। शादी ब्याह की तकरीबात के नए SOPs का फैसला भी कल ही किया जाएगा। कोरोना के साथ पाबंदियों की भी वापसी हो गई। एनसीओसी ने फिजाई और ज़मीनी सफ़र के दौरान खाने की अशिया पर पाबंदी लगा दी। सूबों के साथ मिलकर मौसर इकदाम करने का फैसला किया गया। स्कूल खुले रहेंगे या बंद होंगे, सूबाई वज़राए तालीम का इजलास कल होगा। शादी ब्याह की तकरीबात के लिए SOPs का फैसला भी कल किया जाएगा। अब बात करते हैं महंगाई की। तो गैस और बिजली के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 1 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये फी लीटर महंगा हो गया है। शहरी बिलबिला उठे हैं, कहते हैं तब्दीली सरकार आवाम को महंगाई की चक्की में पीसने के लिए बरसरे इक़्तिदार आई है। हमें रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम खान। महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। गैस और बिजली के बाद पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी हो गईं। एक माह के दौरान कीमतों में 2 बार इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 1 पैसा फी लीटर इजाफा हुआ, जबकि हाई स्पीड डीजल और मिट्टी का तेल 3 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 3 रुपये 33 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। हुकूमत के वास्ते इतना दिला थे ना, इतने ठहरे बजे है ना, आदत तब्दीली आएगी। सारे गरीबों का खाना खराब कर देती। अच्छा गरीब दवाई नहीं गिन सकते, सादा क्या अल्लाह को हदायत देवे। कीमत में इजाफे के बाद पेट्रोल 148 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा, जिस पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। उनका कहना था ये हुकूमत सिर्फ आवाम को महंगाई की चक्की में पीसने के लिए बरसरे इक़्तिदार आई है। रोजगार बिल्कुल नहीं है, आवाम बिल्कुल परेशान है। रोज बरोज ये जो कभी 4 रुपए बढ़ रहे हैं, कभी 10 बढ़ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। ये खान साहब ने कहा कुछ है और किया कुछ है। 100 रुपये लीटर है, 150 रुपये लीटर थिया खड़े और गरीब बंदा कि 400-700 रुपये बाहर है। शहरी हलकों का कहना था हुकूमत गरीब आवाम के हाल पर तरस खाए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। जिसका डर था वही हुआ। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हाजी शाहिद रजा सिद्दीकी कहते हैं हुकूमत नाकाम हो चुकी।
اسی لیے 27 فروری کو اپنے قائد کے حکم پر لانگ مارچ کریں گے۔ منی بجٹ کے بعد پیٹرولیم مصنوعات اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ، مہنگائی کی چکی میں پسے غریب عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور ٹکٹ ہولڈر حاجی شاہد رضا صدیقی کہتے ہیں کہ منی بجٹ سے مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے، ایک ماہ میں دوسری بار پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، ادویات سمیت کھانے پینے کی اشیاء بھی 17% مہنگی ہو گئی ہیں۔ 3 روپے پیٹرول کا ریٹ بڑھا ہے اور 17% اور ٹیکس لگا کے دوائیوں کے ریٹ پہلے بھی 500% بڑھ چکے تھے، اب اور بھی بڑھ چکے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی پیناڈول بھی لینا جائیں تو جو ایک عام روٹین کی دوائی ہے وہ بھی ایک تو شارٹ ہے اور اوپر سے ملتی بھی نہیں، وہ بھی مہنگی ہے۔ حاجی شاہد رضا صدیقی کا کہنا تھا کہ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے، عوام کا مہنگائی سے جینا دوبر ہو چکا ہے۔ پیپلز پارٹی مہنگائی کے خلاف 27 فروری کو لانگ مارچ کرے گی۔ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے 27 فروری کو لانگ مارچ کے لیے اعلان کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم 27 فروری کو بھرپور یہ احتجاج کریں گے اور اس سے پہلے بھی ہم ہر فورم پہ مہنگائی کے خلاف انشاءاللہ احتجاج اپنی آواز اٹھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ عوام کو ریلیف دیں۔ رہنما پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ مہنگائی کے خلاف جنوبی پنجاب بھر میں لانگ مارچ کے لیے تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ کیمرمین عظیم شہزاد کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ 3 سالہ نقیب اللہ کے اغوا کا کیس، اہم حقائق سامنے آ کے ملتان پولیس کو مرکزی ملزم راول کی تلاش ہے۔ چھالوں کا چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے، روہی نے اغوا کاروں کے فرار ہونے کی تصویر بھی حاصل کر لی ہے۔ یاسر مجید کی رپورٹ دیکھیں۔ ڈیلی گیٹ سے 3 سالہ نقیب اللہ کے اغوا کا معاملہ، روہی نے اغوا کے بعد ملزمان کے فرار ہونے کی تصویر حاصل کر لی۔ موٹر سائیکل سواروں کو بچے سمیت جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق اداکارہ ائمہ خان کے دیور مظفر نے اپنے دوست راول کی مدد سے نقیب اللہ کو اغوا کیا تھا، جبکہ گلی میں بچے کو اٹھانے والا ملزم راول ہے، جو موٹر سائیکل پر مظفر کے پیچھے بچے کو لے کر بیٹھا ہے۔ ملزمہ ائمہ خان اور دیگر 3 ملزمان کی گرفتاری کے بعد سے ملزم راول فرار ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم کی تلاش جاری ہے، جس کی گرفتاری سے کیس کے تمام پہلو کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ گرفتار سٹیج اداکارہ جوڈیشل ریمانڈ پر ڈسٹرکٹ جیل میں ہے، جبکہ ملزم مدثر اور مظفر جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہے۔ یاسر مجید، ملتان۔ ملتان کی معروف سٹیج اداکارہ ڈاکٹر ائمہ خان کی جانب سے بچے کو اغوا کرنے کا معاملہ، معروف سٹیج اداکارہ ہنی شہزادی کی روہی سے خصوصی گفتگو، کہتی ہیں ائمہ خان کے اس فیل سے دیگر سٹیج اداکاروں کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ اس عمل کی شدید مذمت کرتے ہیں اداکارہ ہنی شہزادی نے ملزمان کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ملتان سٹیج کی معروف اداکارہ ڈاکٹر ائمہ خان کو بے اولادی نے اغوا کار بنا ڈالا۔ ڈاکٹر ائمہ خان نے 4 روز پہلے کڑی جمندہ والی سے 2.5 سالہ نقیب اللہ کو اپنے شوہر مدثر اور دیور کے ذریعے اغوا کروایا۔ ائمہ خان کے گھر سے بچے کی برآمدگی پر شوبز حلقوں میں بھی ہلچل مچ گئی۔ معروف سٹیج اداکارہ ہنی شہزادی نے کہا کہ ائمہ خان کے اس عمل سے دیگر سٹیج اداکاروں کے اوپر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ ایک چیز کی کمی رہ گئی تھی، اغوا۔ یہ بدماشوں کے کام ہیں یا بڑے لوگوں کے کام ہم نے سنے تھے، لیکن اگر ہماری انڈسٹری میں آ کے ڈاکٹر ائمہ، میں نے تو کبھی اتفاق نہیں ہوا، ایک ڈرامے کا اتفاق ہوا فیصل آباد ان کے ساتھ کرنے کا، تو میں نے سنا جی کہتے کہ ان کے بیبی نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے انہوں نے بچے کو کڈنیپ کر لیا، لیکن خدا رہا جس کا بچہ کڈنیپ کیا اس ماں کا تو سوچے نا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ملتان نے گرفتار ڈاکٹر ائمہ خان کی ضمانت پر ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ معروف سٹیج اداکارہ ہنی شہزادی کا کہنا تھا کہ اولاد ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے، مگر کسی کی گود اجاڑ کر اپنی گود آباد کرنا ہمکانہ عمل ہے۔ اداکارہ ہنی شہزادی نے ملزمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ جرم تو جرم ہے، چاہے وہ آپ نے خوشی سے کیا ہے، چاہے آپ نے انجانے میں کیا، اس کی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ آنے والا کوئی بندہ، وہ آرٹسٹ ہو چاہے کوئی بھی بندہ، اس کو یہ سٹیپ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اب کسی کا گھر برباد کر کے اپنے گھر کو کس طرح آباد کرنا چاہیں گے، یہ سراسر زیادتی ہے، غلط ہے۔ میں ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوں، تھی، رہوں گی۔ ملزمہ ڈاکٹر ائمہ خان، اس کا شوہر مدثر اور دیور مظفر تاحال گرفتار ہے۔ ملزمہ کے شوہر اور دیور کو جسمانی ریمانڈ ختم کرنے پر کل دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کیمرامین سفیر حیدر کے ہمراہ وسیم شہزاد، ملتان۔ لیا کے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے ڈپٹی کمشنر اظفر ضیاء کا احسن اقدام، ڈپٹی کمشنر کی کوششوں سے 3 واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے کے کام کا آغاز۔ لیا کی تینوں تحصیلوں میں نجی اداروں کے تعاون سے RO واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے جا رہے ہیں۔
लिया में डीसी की सरबराही में साफ पानी के मंसूबे के हवाले से मीटिंग हुई, जिसमें फैसला किया गया कि चौक आजम, चुबारा और करोड़ में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे। डीसी का कहना था कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बिजली के बजाय सोलर प्लांट पर चलेंगे, जिससे बिजली के बिल की भी बचत होगी। डीसी ने कहा कि प्लांट की तनसीब से शहरियों को साफ पानी की फराहमी में मदद मिलेगी। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इशफाक हुसैन सियाल और दीगर भी मौजूद थे। मुल्तान में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अवानपुरा की मिडिल स्कूल में अपग्रेडेशन। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने स्कूल के अपग्रेडेशन का संग बुनियाद रखा। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी भी इस मौका पर मौजूद थे। मुल्तान में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अवानपुरा की सुनी गई। प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करके मिडिल स्कूल का दर्जा दे दिया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने स्कूल की अपग्रेडेशन का संगे बुनियाद रखा। तकरीब में तर्जुमान वज़ीर आला नदीम कुरैशी भी मौजूद थे। नदीम कुरैशी का इस मौके पर कहना था कि अवानपुरा के बच्चों के लिए स्कूल की अपग्रेडेशन तोहफा है। अपग्रेडेशन से बच्चों को अपने इलाके में तालीम की सहूलत हासिल होगी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अवानपुरा में मौजूद है। ये बड़ा गुंजान आबाद इलाका है। ये अपग्रेड होकर मिडिल स्कूल बना है। बहुत बड़ी आबादी है। आज उसका संगे बुनियाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने रखा है। मैं भी साथ था, तमाम अहले इलाका साथ थे। इससे इस इलाके में तालीम को फरोग मिलेगा और आने वाले दिनों में ये मंसूबा हाई स्कूल में कन्वर्ट होगा। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाफिज फरीद ने कहा कि वो MPA नदीम कुरैशी के शुक्रगुजार हैं। इनकी काविशों से स्कूल की अपग्रेडेशन मुकम्मल हुई। इस सहूलत से एक बड़ी आबादी मुस्तफीद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह PTI के विजन के मुताबिक, इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक, जो इमरान खान साहब का मंशूर है कि तालीम और तरबियत को ज़्यादा अहमियत दी जाए, उसी हवाले से इस UC के अंदर ये पसमानदा इलाका है। तो इस UC में ये तालीम के लिहाज से बहुत बेहतर इकदाम है और नदीम कुरैशी साहब ने इसके लिए बहुत कोशिश की है। इंशाल्लाह इससे इलाके के अंदर बहुत फायदा होगा और आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी होगी। तकरीब में चेयरमैन मार्केट कमेटी शेख ताहिर, रहनुमा तहरीक इंसाफ अमीन अंसारी, सखावत अंसारी, खालिद चट्ठा, दानिश खान, शाजिया वहीद अरई, सैयदा अरूज फातिमा और दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान में सजादा नशीन दरबार हजरत मूसा पाक शहीद मखदूम सैयद अबुल हसन गिलानी से दरबार हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात की है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मखदूम अबुल हसन गिलानी से उनके भाई मखदूम मीरा मुहय्युद्दीन गिलानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और दुख का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी ने मरहूम मीरा मुहय्युद्दीन गिलानी के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यू मुल्तान में चौधरी मोहम्मद असगर सरोहा एडवोकेट की रिहाइश का आमद हुई। शाह महमूद कुरैशी का चौधरी मोहम्मद असगर सरोहा से उनकी वालदा की वफ़ात पर इजहार अफसोस और फातिहानी की गई। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी कराई। इस मौका पर हनीशा, इंजीनियर चौधरी मोहम्मद रफ़ी, चौधरी मसूद अख्तर भी उनके हमरा मौजूद थे। कमिश्नर DG खान कोहे सुलेमान में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए मुतहरिक हो गए हैं। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने रात गए तरक्याती मंसूबों का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने कोहे सुलेमान में तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने की हिदायत की। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने भारती हस्पताल का भी अचानक दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की ख़ुसूसी हिदायत पर कमिश्नर DG खान ने कोहे सुलेमान का दौरा किया। पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान मोहम्मद इकराम मलिक भी उनके हमरा थे। ऐसी बिल्डिंग में कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा को तरक्याती मनसूबों के हवाले से तफसीली ब्रीफ किया। कमिश्नर ने कोहे सुलेमान के मुख्तलिफ तामीर होने वाले रोड्स का मुआयना किया। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा अचानक कोहे सुलेमान भारतीय अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने डॉक्टर समेत दीगर अमले की हाजिरी को चेक किया। लियाकत अली चट्ठा ने मरीजों से मुलाकात करते हुए सेहत की सहूलियात बारे भी पूछा। कमिश्नर का कहना था कि सेहत की सहूलियात बारे किसी किस्म की शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर DG खान लियाकत अली चट्ठा खेलों के फरोग के लिए कोशा। छुट्टी के रोज कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने पॉलिटिकल असिस्टेंट मोहम्मद इकराम मलिक के हमरा कोहे सुलेमान के मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स ग्राउंड का तफसीली विजिट किया। कमिश्नर ने मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स ग्राउंड का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कमिश्नर DG खान लियाकत अली चट्ठा का इस मौके पर कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कोहे सुलेमान में भी मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया गया है। कबायली नौजवान खेल में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। कोहे सुलेमान में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स ग्राउंड के क़याम से कौमी सतह के खिलाड़ी निकलेंगे। कोहे सुलेमान मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स ग्राउंड भारती का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है, ताकि नौजवान स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेल खेलें
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इलाके के नौजवानों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है। मुल्तान में संडे को फन डे बनाने के लिए नन्हे बच्चे खासे पुरजोश रहे। सुबह सवेरे नाश्ते के बाद किला कोहना कासिम बाग का रुख कर लिया, झूले झूले और खूब एंजॉय भी किया। बच्चों का कहना था कि छुट्टी का दिन तो होता ही एंजॉय करने के लिए है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तो इतवार, ऊपर से मौसम भी ठंडा ठार। छुट्टी के दिन का भरपूर मजा लेने के लिए नन्हे बच्चे पहुंचे किला कोहना कासिम बाग में किया खूब हल्ला गुल्ला, झूले झूलकर भरपूर एंजॉय किया। मेरी ये बेटी है, उसके साथ बस ये सुबह से जिद कर रही थी कि जी चलें, हमने किले पे जाना है, एंजॉय करना है, कबूतरों को दाना डालना है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, जो सबसे बड़ी बात है। बच्चों ने बनाई 2 टीम्स और क्रिकेट भी खेली। वालिदैन ने भी बच्चों के हमरा खूब मौज मस्ती की। नन्हे बच्चों का कहना था कि छुट्टी का दिन है और मौसम भी अच्छा है, इसलिए तफरी कर रहे हैं। हम मुल्तान के हैं, हम यहाँ पे झूला झूलने आए हैं और यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है। आज संडे का दिन है और स्कूल से भी छुट्टी है, तो इसलिए आज मौसम बहुत अच्छा है। हम यहाँ पे झूले झूलने आए, मैं अपने कजन्स के साथ आई हुई हूँ। बच्चों के साथ वालिदैन ने भी छुट्टी को खूब एंजॉय किया। इनका कहना था कि यहाँ आके कैमरे की आंख में यादें महफूज कर रहे हैं। वैसे भी बच्चों के साथ बच्चा बन जाने का भी अपना ही मजा है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। जनूबी पंजाब का मरीज सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया है। फोर्ट मनरो में सयाहों की मौज मस्तियां और हल्ला गुल्ला। दिलकश नज़ारे दिल को लुभाने लगे। लोगों ने संडे को फंडे कैसे बनाया, बताएंगे अली मूसा रजा। बात की जाए फोर्ट मनरो की तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जनूबी पंजाब में इससे बढ़कर अपनी नौयत का सियाहती मुकाम और कोई नहीं। सियाह यहाँ सैर तफरीह के लिए आते हैं और अपना दिन यादगार बनाते हैं। सियाहों का मानना है कि फोर्ट मनरो मरी से कम नहीं, ये पुरसुकून है और यहाँ आने में किसी किस्म की दुश्वारी भी नहीं। इस एंजॉय को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एंजॉय के लिए लम्बा मिनट बहुत कीमती होती है। सियाह म्यूजिक लगाकर झूमर ताड़ी और गीत से लुत्फ अंदोज होते हैं, तो वहीं फातिमा जिन्ना पार्क में झूले झूलते बच्चों को भी खेल कूद का मौका मिलता है। उस्ताद कराम भी छुट्टी के रोज तुलबा को लेकर फोर्ट मनरो आते हैं। फोर्ट मनरो जैसे मरी से लोग बाइकाट किया हुआ है, डरे हुए हैं सिक्योरिटी के इशू की वजह से। वहाँ पे वो जो ना डेथ हुई हैं, तो यहाँ पे मैं जो ना लोगों को दावत देता हूँ, जो हमारे साउथ पंजाब के लोग हैं। मैं यहाँ पे जो ना हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, BMP है, जो बाकी जो ना लेवीज हैं, तो ये जबरदस्त जो ना परफॉर्म कर रहे हैं। सानहा मरीज के बाद सियाहों ने फोर्ट मनरो को एक महफूज सियासी मुकाम करार दिया है और वज़ीर आला पंजाब से मुतालिबा किया है कि मरीज की तरह यहाँ भी सहूलियात फराहम की जाएं। कैमरामैन हसनैन रजा के साथ अली मूसा रजा, कोहे सुलेमान, फोर्ट मनरो। रहीम यार खान में ब्राइडल हेयर एंड मेकअप की एक रोजा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। रैंप पर ब्राइडल्स की कैटवॉक को शुरका ने तालियां बजाकर दाद दी। आइए आपको झलकियां दिखाते हैं। रहीम यार खान में ब्राइडल हेयर एंड मेकअप की एक रोजा तरबियती वर्कशॉप सजी तो खवातीन ब्यूटिशियंस और लड़कियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। वर्कशॉप में मॉडल्स ने दुल्हन के लिबास ज़ेबे तन किए और जदीद मेकअप और हेयर ड्रेसिंग करवाई। यहाँ पर स्किन का डेमो चल रहा है जो सर चौहान साहब दे रहे हैं, और इसके अलावा ब्राइडल मेकअप करके दिखाया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सिटी में आर्टिस्ट बहुत कम आते हैं, तो यहाँ पर इसलिए क्लास दी जाती है कि ये लोग वो चीज़ें सीख सकें जो यहाँ पर नहीं सिखाई जाती। सर यहाँ पर लेक्चर देंगे, प्रॉपर ब्राइडल रेडी करके दिखाएंगे, बच्चों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तरबियती वर्कशॉप में खवातीन और लड़कियों को जदीद मेकअप बारे ब्यूटी टिप्स दी गयी। मॉडल्स की ब्राइडल ड्रेसिंग में रैंप पर कैट वॉक को शुरका ने खूब सराहा और अपनी खुशी का इजहार किया। हमने अपनी स्किन केयर के बारे में सीखा है, हेयर केयर के बारे में सीखा है, हम अपनी ब्यूटी को कैसे एनहांस कर सकते हैं, हम अपनी पर्सनल स्किल्स में किस तरीके से इजाफा कर सकते हैं। इस तरह की जो है वो एक्टिविटीज होनी चाहिए। इस वर्कशॉप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा इवेंट है ये, और इस तरह की वर्कशॉप हमेशा हमारे रहीम यार खान में होनी चाहिए। ब्यूटिशियंस का कहना था कि इस तरह की तरबियती वर्कशॉप के बाद वो न सिर्फ अपनी ब्यूटी पार्लर्स और हेयर सैलून खोलकर रोजगार कमा सकती हैं, बल्कि सनफे नाजुक की खूबसूरती में मजीद निखार लाने में भी कामयाब हो सकती हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना।